तो आज के हमारे प्रोजेक्ट की टाइटल जो कि वो है बस ब्लूम और बायो। तो आज का जो हमारा मॉडल है वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। आज ये माइक्रो ग्रीन माइक्रो सेटअप प्रोजेक्ट बनाया है अंडर द थीम। आज हम अर्थ डे मना रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस में। क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग इन लद्दाख। In this particular program, the idea is to inculcate among the students to achieve sustainable development goals. आज हमारा मॉडल है हम एक मॉडल विलेज क्रिएट करने की और डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर के मदद। And we are here to represent our model, which are mainly based on smart eco-farm, sustainable agriculture farming. This year's theme, Our Power, Our Planet, could not be more timely or more urgent. Hello everyone, my name is Dr. Mohammad Salim, Coordinator of Department of Environmental Science. Today we will be gathering here to celebrate World's Earth Day 2025 on the theme Safeguarding Our Frozen Heritage. Now we will be having simultaneously 3 programs we will be having on this day. We will be having painting competition, then we will have working science model exhibition by different students from different colleges that will be invited during this program. We will be having another program simultaneously, that is plantation drive that has been going on since last week. Now this particular plantation drive is under the banner of a green initiative that has been taken by Jamaatul Isna Ashariya, Kargil and district administration. Now that is one mega plantation drive, a target of 1 lakh plantation drive, and the Kargil campus University of Ladakh has decided to plant around 5,000 saplings. Now in first phase during the last week, the campus planted 1,000 saplings, and today on the occasion of World Earth Day we are again planting 1,000 saplings that has been distributed by the administration and the organization itself. So simultaneously we will be having 3 programs, like I said, painting and then working model exhibition and then plantation drive. Then after lunch we will be having a particular program where a resource person from the CREDA will deliver a talk on particular theme. Our chief guest for the main event will be Professor Diskitamo, Principal Government Degree College Kargil, and then we will be having our prize facilitation for the students who will be ranked among first, second and consolation prizes. Within a few moments the program will start. The painting competition, the working exhibition models will be displayed by different colleges. In this particular program, the idea is to inculcate among the students to achieve sustainable development goals.
और हमने अर्थ डे कुछ इस तरह से मनाया, पेंटिंग कंपटीशन और मॉडल कंपटीशन रखा है। तो हमने बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढने के लिए हमने बहुत स्टूडेंट्स को बुलाया है यहाँ पे कारगिल कैंपस में। तो हमने पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो लाइक इनोवेटिव ट्रांजिशन शो करने के लिए हमने ये बनाया। हेलो जुले, टुडे हमारे कैंपस में अर्थ डे के रिलेटेड एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ था और उसका थीम था सेफगार्डिंग और फ्रोजन हेरिटेज, बिल्डिंग अ क्लाइमेट रेसिलेंट एंड सस्टेनेबल लद्दाख। यहाँ करगिल के अलग अलग कॉलेजेस से पार्टिसिपेंट्स आए, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स में भी पार्टिसिपेंट्स थे और सबने अर्थ डे के रिलेटेड अलग अलग थीम्स पे पेंटिंग्स बनाई। Assalamu alaikum Jule, my name is Archu Shahar and she is my colleague Atya Batul, and we are a first year student of School of Agriculture, Science and Technology Kargil campus, and we are here to represent our model which are mainly based on smart eco farm, sustainable agriculture farming. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे ये है ड्रिप इरिगेशन, जिसमें हमने ये टैंक लगाया है और इस टैंक के साथ हमने माइन पेप जोड़ा है। इसके बाद हमने सब लाइन जोड़ा है। इसके बाद हमारा ये है लेटरल पेप और इसमें हमने इमेटर्स ड्रिप लगाए हैं। मेन मकसद हमारा बेनिफिट ये है कि मतलब ड्रिप इरिगेशन का हम 70% तक वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और उतना ही वाटर हम प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को जितना उसको चाहिए होता है, थ्रू डायरेक्टली उसके रूट में ही हम डायरेक्ट उसको मतलब डाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें हमने डाला है मल्चिंग किया है यहाँ से इस लाइन से, और मल्चिंग का मेन बेनिफिट ये है कि मतलब इसमें हम वीड्स को कम ग्रो कर सकते हैं और इसमें इवापोरेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से मॉइस्चर में बिल्कुल मेंटेन रहता है। और हमारे यहाँ है कोकोपीट, और कोकोपीट हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और इसके साथ इसमें हेलो, माय नेम इज़ समीना कौसर और हम यहाँ पे ITI कारगिल से आई है। तो आज के हमारे प्रोजेक्ट की टाइटल जो कि वो है बस, ब्लूम और बायो। जो बस जो कि रहेगा वो हमने रिप्रेजेंट किया है पॉलिनेटर्स को, और जो ब्लूम रहेगा वो जो हमारे प्लांट रहेगा उनको हमने रिप्रेजेंट किया है ब्लूम। और इसके बाद जो बायो रहेगा वो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया है हमारे प्लांट्स के लिए, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है ब्लूम को। तो ये जो सबसे पहले जो कि हमने बनाया है वर्टिकल गार्डन, जो कि हमने क्योंकि आजकल क्या हो रहा है अर्बन साइड में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे लिए जो प्लांटिंग के लिए जगह ही नहीं बच पा रहे हैं, सो दैट हमने ये वर्टिकल गार्डन का कंसेप्ट लिया है। ये एक इम्पोर्टेंस के बारे में एक इम्पोर्टेंस बताए तो ये हमारे एयर को एक तो फ्रेश रखेगा। दूसरा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो नेचर्स होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि हमारे बर्ड्स होगा उनको अट्रैक्ट करके उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने वर्टिकल गार्डन तो बनाया, लेकिन हमने क्या करते हैं कि जो पॉलिनेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं उनमें, क्योंकि जो पॉलिनेशन 75% ज़्यादा मोर देन 75% जो कि पॉलिनेशन क्या होते हैं बीज की वजह से करते हैं। इसके लिए हमने बनाए हैं बी होटल, जो कि हमने बीज को एक नेस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए बी होटल बनाए हैं। इसके बाद जो बी होगा वो पॉलिनेशन ज़्यादा करेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो भी हम उगाएंगे, जो भी हम क्रॉप कल्टीवेट करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेंगे। उनको और भी अच्छे प्रोडक्टिविटी लाने के लिए हमने क्या किया है, बायो जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका इस्तेमाल किया है, जो कि ऑर्गेनिकली हमने बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जुले, मैं अर्शुकनीस फातिमा और मैं हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस कारगिल कैंपस की स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा मॉडल है वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। मोस्टली हमारे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होगा कि हम कैसे सीवेज वाटर को ट्रीट करेंगे स्टेप्स ऑफ फिल्ट्रेशन के ज़रिए, एंड सेकंड थिंग इज़ वर्मी कंपोस्टिंग को हम कैसे यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ करके कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट निकलेंगे उसको हम स्टोर करेंगे, उसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग का यूजुअली होता क्या है, एक ही पिट में होगा, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स दिखाने के लिए हमने इसको डिब्बे बनाए हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होंगे उसको हम इसमें डालेंगे, एंड सेकंड स्टेप में अर्थवर्म्स को ऐड करेंगे। फिर अर्थवर्म्स में ज़्यादातर हम स्पीशीज़ की बात करें तो एसिना फेटिडा को लद्दाख जैसे उसमें ज़्यादातर वो स्पीशीज़ यूज़ होता है। तो सेकंड स्टेप में वो अर्थवर्म्स जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स है उसको डिग्रेड करके थोड़ा सा हल्का बना देता है। फिर थर्ड स्टेप में और भी ज़्यादा डिग्रेड होगा, एंड लास्ट में हमें मिलता है और वर्मी कंपोस्ट, जो कि एक बहुत ही बेनिफिट
बेनिफिशियल होता है हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट इंक्रीज़ करने के लिए। यही वर्मी कंपोस्ट हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। माय नेम इज़ सकीना महक, स्टूडेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल। हमने आज ये माइक्रो ग्रीन माइक्रो सेटअप प्रोजेक्ट बनाया है अंडर द थीम क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग इन लद्दाख। ये हमने माइक्रो सेटअप बनाया है जिसमें सारे मटेरियल्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मटेरियल्स जितने भी हमने इसमें यूज़ किया है ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल्स है, कंस्ट्रक्शन साइट से लिया है हमने विद इन द कैंपस। और इसका मेन मकसद हमारा यही है कि लो इनपुट पे हम माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो कर सकते हैं, ख़ासकर हमारे लद्दाख जैसे एरियाज़ में जहाँ विंटर में हमें वेजिटेबल्स के सप्लाईज जो है वो बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ करके हम माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो कर सकते हैं। और इनसे मतलब हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि ये बाहर में तो ज़्यादातर यूज़ होते हैं और इससे अच्छा खासा एक इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भी इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घर के हमारे जो औरतें होते हैं वो भी इससे लो सेटअप में अपने ही घर में इसे करके इससे एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरा नाम स्तंज तुबदान है और मैं जोग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ। आज हमारा मॉडल है हम एक मॉडल विलेज क्रिएट करने की और डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर की मदद से इरिगेशन सिस्टम को भी डिपिक्ट कर रहे हैं। इसमें हमने एक त्सेवांग नोफेल जी का एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर का एक मॉडल है, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है, जिसमें हम एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ वाटर को रोक के एक एम्बांकमेंट्स के थ्रू रोक के उसको विंटर के टाइम पे स्टोर करके रखते हैं फॉर फर्दर यूज़। स्प्रिंग के टाइम पे जब ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर मेल्ट होके आता है तब उस वाटर को हम एक रिजर्वर, वाटर रिजर्वर या फिर जिंक में हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पसेस हो या फिर हमारा डेली यूजेस के लिए भी। इसमें हम इस मॉडल विलेज में हमने ज़ीरो कार्बन एमिशन एनर्जी को भी शो करने की कोशिश की है यूजिंग द सोलर एनर्जी। जैसे कि हमें पता है कि लद्दाख में आउट ऑफ 365 डेज़ 280 या फिर 290 डेज़ हमारा सोलर एनर्जी रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कारगिल कैंपस, प्रेसिडेंट प्रोफेसर डिस्ट्रिक्ट अमो प्रिंसिपल जीडीसी कारगिल विद ट्रेडिशनल खातास। Mr. Ali Nakib, it is a reminder of our collective responsibility towards this planet we call home. 2004 में ही प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन था वो मोर देन 400 मिलियन टन्स था। मैं तो सोचने वाली बात है कि हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इसने सारे अपने प्लैनेट्स के हर जगह को घेरा है, बल्कि ह्यूमन के अंदर भी घुसने लगे हैं नैनो प्लास्टिक के शेप में। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग WWF के एक पेपर में मैंने देखा था, 2019 की बात है शायद, कि नैनो प्लास्टिक्स कैसे हमारे अंदर, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स की तो बात ही छोड़ो, कैसे घुस रहा है। ड्रिंकिंग जो वाटर है हम यूज़ करते हैं, या खाना हम यूज़ करते हैं, या फिर एयर जो पोल्यूटेड एयर है उसके थ्रू कैसे घुस रही। Up next we have a special performance by the students of Kargil campus, a mime that echoes the voice of the earth through silence. Please put your hands together and welcome our performers on the stage.
the winner in both the painting and walking science model competition. The position holders in the painting competition, the second prize goes to Kamrul Nisa, Department of Anthropology, and the first position goes to Musharraf Ali, GDC Kargil. Camera, please. Camera. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. The second prize goes to Government Degree College, Kargil. Thank you. And the first prize goes to ITI Kargil. It's now our honor to invite our chief guest, Professor Diskit Angmo, Principal GDC Kargil. Please join me in warmly welcoming our chief guest. Respected faculty members, esteemed guests, dear students and friends. It is both an honor and a privilege to stand before you today at the University of Ladakh Kargil campus as we mark World Earth Day 2025. This year's theme, Our Power, Our Planet, could not be more timely or more urgent. Today, we recognize the immense power we hold, not just as individuals, but as a collective force, to shape the future of our planet. And what better place to echo this message than right here in the lap of the Himalayas, surrounded by the natural beauty that reminds us what we are fighting for. I want to applaud University of Ladakh Kargil campus for not only organizing this meaningful event, but for bringing home the message of Earth Day loud and clear. You have turned awareness into action, and you are showing us all that even the most remote corner of the world can lead the way in environmental consciousness. The Earth Day 2025 call to triple renewable energy generation by 2030 is a bold one, but it is exactly the kind of ambition we need if we are to transition from fossil fuels to a cleaner, more sustainable future. And this transition isn't just about technology and infrastructure. It is about people. It is about each of us using our voices, our vote, and our everyday choices to demand change. By signing petitions, organizing protests, and standing up for our planet, we exercise not only our civic power, but our moral responsibility. Let us remember, the earth does not belong to us. We belong to the earth. If we do not care for and nurture our earth, it will one day cease to nurture us. Let us make sure that day never comes. Thank you, and happy World Earth Day once again. Thank you.